مرزا پور میں مفتی صاحب نے جب فتوا دیا تو اس میں دیا کیا ہے، یہ دارالحرب ہے، یہ غیر مسلموں کا یہ ملک ہے، یہاں پر کافروں سے غیر مسلموں سے بیاج لینے میں کوئی حد نہیں، جائز ہے، مسلمانوں سے بیاج نہیں لیا جا سکتا۔ فتوا موجود ہے میرے پاس، یہ دارالحرب ہے، اور دارالحرب میں ایک حربی اور مسلم کے بیچ میں وہ کہہ لیجیے کہ بیعت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال، یا بھی جیسے ایک کتاب دیکھیے میرے سامنے موجود ہے، کنز الحسین، یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر ہر مسلمان جانتا ہے کہ کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں اس کتاب کے اندر یہ اوپر کسی ظہیر الدین احمد بدایونی ان کا نام چھپا ہوا ہے، اور اندر دیکھیے یہ تعویذ بنائی گئی اور تعویذ میں کلمہ لکھا گیا ہے، لا الہ محمد، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں کیا ہو رہا، لا الہ محمد، کیا مطلب ہوا، لا نہیں، الہ معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اندر جا کے لا الہ پھر اللہ۔ اس طرح سے کلمے کو کیسے توڑ مروڑ کے، اور صرف یہی نہیں، اسی کتاب کے اندر آپ دیکھیے، آپ جب دیکھنا چاہے پروگرام کے بعد آئیے آپ کو دکھاتا ہوں میں، اسی کتاب کے اندر دیکھیے فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان کو پکار پکار کے ان سے مدد مانگی گئی ہے، یا نمرود، یا ابلیس، یا اقتانوس، بحق علیکن ملیکن خلیکن مخلوقن انتل تعلمو انی قلوبہم، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے کر کے یہ لکھا ہو۔ یہ تعویذ اس طرح کے بنا، اور دیکھیے اس میں کھوپڑی بھی بنا ہے، چہرہ بھی بنا ہے، ناک بنا ہے۔ اب بتائیں دوستوں، جب یہ اردو میں چھپے گی اور اس طرح کی کتابیں، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ یہ ظہیر الدین احمد بدایونی یہ کون صاحب ہیں، یہ کیا ان کی حقیقت ہے، اور یہ کہاں سے کون سے مسئلے لے آئے ہیں۔ یہ اس طرح سے کھوپڑی بنا کے، چہرہ بنا کے، یہ ابلیس اور شیطان سے جو مدد مانگ کر کے یہ اس طرح کی، یہ دیکھیں کتاب بڑی پتلی سی گھر گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے، وہ سے سیدہ بی بی کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی۔ اس کتاب کے آخر میں لکھنے والے نے اپنا دامن بچانے کے لیے کہیں پر مقدمہ نہ کر دے، لکھ بھی دیا ہے کیا کہ یہ کتاب مستند نہیں ہے، پیچھے لکھا ہے تاکہ آگے آپ نہ پڑھ سکے، پیچھے لکھ دیا کہ یہ کتاب صحیح نہیں ہے، یہ ٹھوک کتاب نہیں ہے، مستند نہیں ہے، اور پھر بھی گھر گھر میں پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے۔ یہ ابھی میں ریلوے اسٹیشن مرزا پور جا رہا تھا کہ وہاں پر دیکھیے یہ ایک اشتہار لگا تھا، اسے دھیرے سے میں نے کسی طرح سے اکھاڑ کے اسے جوڑ جاڑ کر کے رکھا ہوں کہ ذرا لوگوں کو دکھاؤں گا۔ یہ بتائیے مہدی علیہ السلام کب آئیں گے؟ قیامت کے قریب آ کے چلے گئے کیا؟ یہ مہدی علیہ السلام کا عروس ہو رہا ہے مہاراشٹر میں، تاج مہدی، تاج لفظ بڑھا کے تاج مہدی علیہ السلام، اور یہ کسی بوڑھے پھوسب کی تصویر لگا دی گئی ہے، اور کرنے والے تمام اس میں غیر مسلم ہیں، ایک آدھ دو ہی مسلم نام ہے، سب غیر مسلموں کے نام بھرے ہوئے ہیں۔ کیسی کیسی سازشیں میں آپ کو بتاؤں دوستوں، ان کو یہ کرنے کی رغبت کس نے دی، ان کو یہ کرنے کا، ان کو اس طرف بڑھانے کی دعوت کس نے دی؟ ہم نے اور آپ نے دی۔ اپنے بزرگوں کے ناموں کو ہم نے کس طرح سے توڑا مروڑا۔ ہمارے مرزا پور میں آئیے، اگل بغل کے اور ادراک میں جائیے تو کہیں آپ کو اگر کوئی نیک آدمی تھے، کوئی ہمارے ابا اگر مرے، ہمارے دادا مرے، حافظ تھے، عالم تھے، قاری تھے، تو ان کے سرہانے، قبر کے سرہانے پر تختی لگائیں گے پتھر کی، حضرت علامہ حافظ قاری فلانے فلانے، لمبا چوڑا نام لکھتے ہیں۔ لیکن بزرگان دین اگر کوئی نیک لوگ کسی زمانے میں رہے ہو، ہم لوگوں کو پیدائش کے پہلے بھی اگر وہ مر چکے ہیں، تو آج ان بزرگوں کے نام کیا رکھے جاتے ہیں؟ گھوڑے شہید بابا، لائن شاہ بابا، اب بریلی میں جائیے کتے شاہ بابا، ہاں، جبکہ نام قطب شاہ ہے، اور نام لوگوں نے بگاڑ کر کے نام اس کا کتے شاہ بابا کر دیا۔ بلائی خالہ،
9 गजी बाबा, ट्रांसफार्मर बाबा, कोनिया शहीद बाबा। और अभी हमारे एक साथी ने बताया हमारे मोहल्ला छोटी मिर्जापुर में, तो बोले कि हमारी दादी बता रही थी कि कहीं पे एक जगह है पद्दन शाह बाबा। हमने कहा यहाँ क्या होता है भाई? कि वहाँ अगर कोई वजू बना के पादता है तो उसकी मुराद पूरी होती है। औज़ु बिल्लाह, औज़ु बिल्लाह। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत हो दोस्तों, अगर जो कोई झूठ बोल रहा। मुझसे उस शख्स ने कहा, तो इनको ये बुजुर्गों के नामों की हंसी कौन उड़ा रहा है? हम आप उड़ाते हैं। तो इनका मुस्लिमों को भी मौका मिला, इनको क्या पता कि मेहदी अलैहिस्सलाम कौन होंगे? समझ नहीं आया तो ताज का एक लफ्ज पढ़ा दिया हमने, मेहदी अलैहिस्सलाम। और देखिए इसके किनारे ओम भी लिखा है, ओम। इधर देखिए ईसाइयों की सलीब भी बनी हुई है। आप बनाएंगे ओम? आप किसी मज़ार पे मस्जिद को ओम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ये साजिशें कौन कर रहा है? सिखों के भी निशान, सबके निशान लिख करके इस तरह से किए जा रहे हैं। क्यों? दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अजीजों, कितने ही बड़े बुजुर्ग जिनकी आप 11वीं भी मनाते होंगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये किताब बुनियतुत तालिबीन, इसको आप उठाइए और आ जाइए। अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के बुजुर्ग थे। आज अगर ये भी जिंदा होते तो इन्हें भी 24 नंबर वहाबी कह के मस्जिद से शायद निकाल दिया जाता। देखिए, हवाले लेके इसलिए आया हूं ताकि जिन्हें देखना हो आके देख लें, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सारी सबूत आप अपने पास रख सकते हैं। अब मेरी किताब मौजूद है, वो भी किताब मैंने हिंदी में लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह के फजल से पहुंच रही है। वो किताब भी आप लेकर के हवालों के साथ में उसमें मैंने दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए फिलहाल ये बात जो कहने जा रहा हूँ, ये बात उस किताब से हटके कुछ दूसरी बात है। इसमें देखिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की कि 73 फिरके होंगे हमारी उम्मत में, 72 जहन्नम में जाएंगे और एक ही जन्नत में जाएगा। पूछा वो जन्नत में जाने वाला फिरका कौन होगा? कहा जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जमात, यानी जिस बात पर मैं हूँ और मेरे सहाबा जिनको मैंने सिखाया जो ये है, इसी बात पर जो रहेंगे वही जो है हक वाली जमात, जन्नत वाली जमात है। यही अहले सुन्नत वल जमात है। तो उन्हीं के बारे में देखिए क्या कहा है। अहले बिदत की बाज निशानियां हैं जिनसे वो जाने जा सकते हैं, वो हदीस की तहकीर करते हैं। जिंदीक की पहचान ये है कि वो अहले हदीस को, यानी कुरान हदीस को मानने वाला को झूठा कहते हैं। तो अहले हदीस यानी कुरान और हदीस दोनों को जो माने, सिर्फ हदीस को नहीं, जो कुरान और हदीस दोनों को माने हैं, वो अहले हदीस को झूठा कहता है। फिरक़े कदरिया अहले हदीस को मुजबर्रा कहते हैं, जहीमिया अहले हदीस को मुशब्बह कहते हैं, राफिज़ी अहले हदीस को नासिया कहते हैं। ये सब ऐसी बातें इसलिए कहते हैं कि उन्हें अहले सुन्नत के साथ दुश्मनी है, और दुश्मनी और तासुब है। अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है, यानी अहले हदीस। जन्नत में जाने वाली जमात अहले सुन्नत वल जमात, उसका सिर्फ एक ही नाम है, यानी अहले हदीस। मैं नहीं कह रहा हूँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पीराने पीर बगदाद के ये वली अल्लाह जिनकी आप 11वीं मनाते हैं, उनकी किताब है। देखना हो आके देख लीजिए और आपको दिल की तसल्ली कीजिए, जहां से मंगाना हो मंगा के पढ़ लीजिए। अब बताइए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो हमें कहें कि अहले हदीस जन्नती जमात होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो कि जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा होंगे, जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा होंगे, वही हक वाली जमात होगी। तो फिर उस हक वाली जमात को छोड़ करके फिर क्यों हम इतने इधर उधर टुकड़ों में बट रहे हैं? फिर क्यों हम इधर उधर की किताबों के पीछे पड़ रहे हैं? फिर क्यों ना हम सीधे सीधे अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान की तरफ बढ़े? दोस्तों, इसलिए सीधी सीधी बात होनी चाहिए। अब चूंकि हमारे बात बहुत से मुकर्रिर हैं और चूंकि अभी बहुत से हवाले थे, लेकिन मुझको लगता है अगर मैं यही तक खोलने लगूंगा तो उनका बेचारों का भी वक्त चला जाएगा और फिर वो पीछे से मेरे ताल्लुक से सोचेंगे कि सारा वक्त तो इन्होंने ही ले लिया है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला रहमान बातें प्यास कुछ लगी रहने दीजिए, ताकि फिर कभी मजीद बातें जब आप अगर कुछ
कुछ और जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे भी तो लगे कि इस बात का असर क्या हुआ है, लोग तहकीक के कितने आगे बढ़े हैं। अब एक आपके लिए मैं ये एक कह लीजिए कि मैसेज छोड़ के उठ रहा हूं कि आप जब हो किसी जमात के अंदर हैं, किसी जमात के हो, किसी भी गिरोह के मानने वाले हो, जैसे कोई आज फजाइल अमाल की जमात, तबलीगी जमात में, कभी कोई जो है रियाज कादरी की जमात, दावत इस्लामी में, कोई जमात इस्लामी में सैयद अबुल आला मौदूदी की जमात में, कोई देवबंदी जमात में, कासिम नानवती, अशरफ अली थानवी, महमूदुल हसन गंगोही, रशीद अहमद गंगोही की जमात में, और कोई किसी भी जो जमात के अंदर लगे हुए लोग हैं, अगर वो आप लगे हैं, आप उन सबों की बातों को आंखें बंद करके मत मानिए दोस्तों, उन बातों को पढ़िए, सुनिए, अब उसको जांचिए अल्लाह के कुरान पर, नबी के फरमान पर। अगर अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान से मिल रही है तो ले लीजिए, अगर अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान के खिलाफ है तो आप किनारे कर दीजिए। भाई हमें इस बात की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वही बताओ जो अल्लाह के कुरान में मौजूद हो, हमें सिर्फ वही बताओ जो नबी की हदीस में मौजूद हो। और नबी की हदीसों को सबसे पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी में भी पहली जिल्द छप गई है सही बुखारी की, अंग्रेजी में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल छप चुकी है, उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल छप चुकी है, उसकी उर्दू की तफसीर में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल छप चुकी है। आप लोग नहीं है पैसा तो 2 4 5 लोग मिलिए, 100 50 रुपए मिलाकर कभी पिकनिक करने जाते होंगे, कभी आखिरी बुध का टूर करने जाते होंगे, तो चलिए 100-50 मिलाकर बुखारी ले आइए, मुस्लिम ले आइए, और मस्जिद में अल्लाह के नबी की हदीस रखिए, मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनिए, सुनाइए, कोई तफरका नहीं होगा, किसी को इतराज नहीं होगा। आप फला जमात नहीं भाई नहीं, आप अपने घर में रखिए, अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह की बात सुनाइए, रसूल की बात सुनाइए, सारा फैसला वही हो जाएगा, कोई झगड़े नहीं रहेगा, सीधा सा फैसला है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जिस तरह से भोपाल गैस कांड हुआ था, कितने लोग मरे थे, लोग लाशों के ढेर लगे हुए थे, पता नहीं चल पा रहा था कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है। जब लोगों के चेहरा देखा जाता, चेहरों पे दाढ़ी नजर आते, अगर खतरा खोल के देखा जाता, खतरा किया हुआ था, तब कहते ये मुसलमान है, क्यों, ये सुन्नत पर अमल कर रहा है, खतरा भी कराया है, दाढ़ी रखा है, मुसलमान है, उसको ले जाकर दफन कर देते थे, और जिसके यहाँ ये 2 निशानी नहीं मिलती उसे ले जाकर गैर मुस्लिम समझ के उसे जला दिया जाता था। तो नबी की 2 सुन्नतों को जिन्होंने अपनाया वो दुनिया की आग से बच गए, नबी की और सुन्नतों को अपनाएंगे इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से भी बच जाएंगे। इसलिए नबी की सुन्नतों को हल्का मत समझिए, और सुन्नत ये सिर्फ सुन करके सुन्नत नाम न समझिए। ये जैसे किताब है फैजान सुन्नत, वक्त नहीं है वरना इसकी भी हकीकत आपके सामने रखता कि किस तरह से नबी की तौहीन इस किताब के अंदर की गई है, किस तरह से इस किताब के शुरू में कैसे तरह से लोगों को, अगर इसके ऊपर मजीद जानकारी आपको हासिल करनी है तो हमारे फजीलतुल शेख जनाब सैयद मिराज रब्बानी हिफ़्ज़हुल्लाह, जिनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, उनकी तकरीर लेकर के आप देखिए, पूरी किताबों के अंदर से कितनी हदीसें हैं, कितनी फिक़ह की बातें, कितनी गढ़ी हुई बातें, किस तरह सारी एक चीज उन्होंने खोल करके रख दी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से करके ये फज़ाइल अमाल है, इसके अंदर किस तरह से नबी की तौहीन की गई है। एक लड़का है अपनी माँ के साथ चला जा रहा है, कदम कदम पे दरूद पढ़ रहा है, रास्ते में उसकी मां मर जाती है, चेहरा काला हो जाता है, पेट फूल जाता है, तो अल्लाह की तरफ हाथ उठा करके वो दुआ करता है लड़का कि मेरी माँ की मुसीबत को दूर कर दे। तभी देखता क्या है कि तहामा की जानिब से हिजाज की तरफ से एक अब्र चला आ रहा है, बादल चला आ रहा है, उस पर एक आदमी सवार है। फिर वो बादल आता है, वो आदमी उस बादल में से उतर के नीचे आता है, उस मरी हुई औरत के चेहरे पे हाथ फेरता है, पेट पे हाथ फेरता है, तो जो चेहरा उसका काला था वो रोशन हो जाता है, जो पेट उसका फूला था उस पर हाथ लगाया तो उसका पेट का सूजन सही हो गया। जब वो शख्स जाने लगा तो वो लड़का पूछता भाई आप कौन हैं कि मेरी माँ की तकलीफ को दूर किया। तो शख्स कहता तुम मुझको नहीं जानते, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। औज़ु बिल्लाह, औज़ु बिल्लाह। वो नबी जो अपनी जिंदगी में किसी नामहरम को देखना न गवारा करे, उसकी उंगली देखना न गवारा करे, वो नबी अपनी वफात के बाद इस फांसी को फाजिल औरत के पेट पर हाथ फेर सकता है, चेहरे पे हाथ फेर सकता है। ये नबी की तौहीन नहीं तो क्या है दोस्तों। अब कोई हवाला नहीं, फलाने बुजुर्ग थे, गए वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अतहर के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के 2 शेर पढ़ते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल पहले तो रूह की बारी थी तो रूह को भेज दिया करता था, वो अगर आस्ताना मुबारक को चूमती थी, जिस्म वही रहता था, रूह को भेज देते थे। जैसे रूह न हुआ कोई वो फैक्स हो गया, जहां जहां भेजते रहे, वो रूह निकल के जाती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक को चूमती थी। और फिर उसके बाद अब जिस्म की हाजिरी की बारी आई है, इसलिए अपना दस्ते मुबारक अपना हाथ दीजिए मैं उसे बोसा दूं। तो नबी
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر پھاڑ کے نکلا اور اسے انہوں نے چوما اور 90,000 لوگوں نے دیکھا. اور وہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے, اسی کتاب کے اندر موجود. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر دیکھا ہوتا اپنی کتاب میں لکھتے نہیں, انہوں نے تو نہیں لکھا یہ واقعہ. اور 90,000 لوگ کا مطلب سمجھتے ہیں دوستو, اگر قبر ہو اور قبر سے ہاتھ اٹھے اور 90,000 لوگ کھڑے ہو تو کتنی دور, یہاں کتنے لوگ ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 400-500 ہوں گے. اگر یہاں کوئی ہاتھ اٹھے تو پیچھے والے دیکھ پائیں گے, اور جب 90,000 ہوں گے تو کتنی دور جائیں گے؟ تو جب سب نے دیکھا تو اس کا مطلب کتنا اونچا ہاتھ اٹھا ہوگا. اور جب ہاتھ کتنا اونچا اٹھا اور اس کو چوما تو ہاتھ چومنے کے لیے ان کی بھی لمبائی بڑی ہوگی. جب پکڑ کے ہاتھ لٹکے ہوں گے تب لیے ان کو بڑے ہوں گے. کیسے چوما, لوگوں نے کیسے دیکھا؟ یعنی گپ اور جھوٹ کی حد کر دی. اسی کتاب کے اندر لکھا ہے فلانے بزرگ تھے یا کون ایک صاحب تھے, وہ مر گئے تو ان کے رقیب آئے, لوگ آئے, ان کو جب نہلانے کے لیے پٹرے پہ لٹایا تو ہنسنے لگے. تو لوگ بھاگے, ڈر کے مارے بھاگیں گے نہیں بھئی ہم مردہ ہنس رہا ہے. اب کوئی نہلانے کو تیار نہیں ہوا تو ان کا ایک رقیب, ان کا ایک دوست آیا, اس نے بھی پتا کہ نہلائے بیٹا نہائے گا کیسے, نہیں نہانا تو پڑے گا تجھے. کسی مردے کو قبر میں لٹایا تو تب سے آنکھیں کھول دی, کہ تم ابھی زندہ ہو کیا؟ کہ مجھے پتا ہے اللہ کا ولی وہ اللہ کا سچا عاشق مرتا نہیں, زندہ ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال ہے. اب بتائیے, آنکھیں کھول رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, جیسے کوئی گدگدی لگا دیا, باتیں کر رہے ہیں, پھر بھی دفن کر دے رہے ہیں. کوئی آدمی تھے, وہ آخری وقت تھا اور آواز لگانے جو گلاس پانی لے آؤ. ان کے گھر میں ایک لڑکا کوئی تھا, نماز میں مشغول تھا, سلام پھیر کے پانی لے کے حاضر ہوا کہ ابا لیجیے پانی. کہہ رہے میں تو پانی پی چکا. کہ میرے اور آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں, تب کیسے پی لیا؟ کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, پانی پلا کے گئے. معاذ اللہ. کوئی کہا کہ ابھی جبریل آئے تھے تو وہ پانی پلا کے. بتائیے دوستو, یہ اتنی بڑی جھوٹ باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو پانی پلانے کے لیے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. اور اتنا بڑے واقعہ ہو گئے, کربلا کا واقعہ, کہاں تو ان کی مدد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. اور کس طرح سے آ کر کے اور اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں لکھ کر کے, یہ کیا باتیں صحیح ہیں؟ نہیں دوستو. اس لیے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان, ان دو چیزوں کے اوپر جو ہے ہمیں دھیان دینا چاہیے. اور کوئی بھی کتاب ہو, کسی نے لکھی اب کس مقصد سے, کیسے لکھی ہے, کیا ہے, ہمیں نہ ہمارے رشتہ دار ہیں نہ ناطے دار ہیں. ہمارے سب سے بڑے رشتہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ, اللہ کے پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو کیا ان کے خلاف کسی کا حکم مانا جا سکتا ہے؟ پیچھے والے نہیں بول رہے, نہیں مانا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آج کے بعد سے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ انشاءاللہ مانیں گے. کیا کتنے لوگ مانیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ. اب ذرا نیچے کیجئے, جتنے لوگ اس میں داڑھی نہیں رکھے ہیں آج کے بعد سے کتنے لوگ داڑھی نہیں اٹھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ. اور اٹھائیے. دیکھیے, نبی سے جسے محبت ہے, اگر تم واقعی نبی کے سچے چاہنے والے ہو تو تمہیں قسم اللہ رب العالمین کی ہے, اٹھا دو ہاتھ نبی کے نام پر. کیا کے بعد سے ہم نبی کے نام پر ہم اپنے چہرے سے داڑیاں نہیں پٹائیں گے, نبی کے حکم کو ہم مانیں گے. یہ جذبہ ہے ہمارے نوجوانوں کا. 2 4 5 ہاتھ اٹھ رہے ہیں. بتائیے دوستوں. اب میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, جو میں نے شروع میں پڑھی تھی سورہ نور کی آیت نمبر 63, کہ سنو جو لوگ رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر زبردست آفت یا دردناک عذاب نہ پڑے. نبی کے حکموں کو نہیں مانو گے, تمہارے اوپر زبردست آفت یا دردناک عذاب پڑنے کی دھمکی اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 63 میں دے رہا ہے. یہ آج عالمی پیمانے پر یہ زلزلے, یہ سونامی, یہ ریٹا, یہ بیٹا, یہ الفا, یہ گاما, یہ کیٹرینا, یہ چکن گنیا, یہ تو ڈینگو, یہ ایڈس, یہ کینسر, یہ کہیں دما, یہ کھانسی, یہ ٹی بی, یہ فلاں ڈھکانا, یہ سوکھا, یہ باڑھ, یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں, ان کو کیا تم نے کم سمجھ رکھا ہے دوستوں؟ ایک مصیبت ختم نہیں ہو رہی, دوسری موجود, دوسری ختم نہیں ہوئی, تیسری. ابھی میانمار میں آیا, کس طرح سے چین کے اندر
कैसे उधर चला आया तबाही, अमेरिका से मदद मांग रहा है। किस तरह से मुसलमानों को काटा गया गुजरात के अंदर, क्या आपको नहीं पता है? किस तरह से मुसलमानों के साथ खून-ए-दिया हो खेल रहा है ये इजराइल, क्या आपको पता नहीं है? किस तरह से अमेरिका का सबसे बड़ा दहशतगर्द ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये बैठ करके मुसलमानों को किस तरह से ये मरवा रहा है, इराक की सरजमीन पर कैसे मुसलमानों की खून से रंगा जा रहा है, क्या आपको नहीं पता है? किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ये यहूद और नसारा ने मिलकर अपनी साजिशों के तहत गिराया और मुसलमानों को उसको सर से बेटा गया। किस तरह से वो ब्रिटेन का है कि इंग्लैंड का वो कह साइंटिस्ट, उसने कई सवालात किए। ये जो 110 मंजिल की इमारत है जो नीचे से ऊपर तक है, अगर जहाज ऊपर के हिस्से में टकराएगी तो उसका जो हीट होगा 1000 डिग्री सेल्सियस से, कितना लिखा था कि 90 डिग्री सेल्सियस पे होगा, उसकी गर्मी नीचे तक नहीं पहुंच सकती है। फिर उसने ऊपर से लड़े हुए जहाज के 110 मंजिल ये सब पूरी धड़-धड़ा के कैसे गिर गई? क्या कोई जवाब दे पा रहे हैं? पता चला नीचे से ऊपर तक उससे पहले से बारूद रखा गया था। गालिबन 4 या 6 हजार यहूदी उसमें काम करते थे। सिर्फ एक यहूदी के मरने की खबर मीडिया से आई, कोई भी यहूदी उस दिन ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। क्यों क्यों क्यों? 38 मल्टीनेशनल कंपनियां जो उस पर अपनी सरमाया लगाई थी, सारी कंपनियों ने अपना सारा रुपया इस हादसे के पहले ही निकाल लिया था। क्यों? कई सवाल इसके अंदर मौजूद है, लेकिन तुम्हें फुर्सत कहां है? आज मस्जिदों से अजान होती है, हय्य अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्य अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ, और हमारे कानों पर जो नहीं रेंगती है, बाजारों में बैठकर गप सलाका करते हैं। किस तरह से इधर हमारे नौजवान मोटरसाइकिल बैठ के चलो फला की जगह की चाय अच्छी होती है, 5 रुपए का तेल खर्च करके 2 रुपए की चाय पीने जाते हैं, 7 रुपए खर्च करते हैं। फिर इस तरह से ये नौजवान ये अपने मोबाइल के अंदर काले ट्यून डलवाता है जिसमें गाने डलवा रहा है, 30 रुपए उसका महीना खर्च करके, और वो गाना खुद नहीं सुनता, दूसरों को सुनाता है, वो सुने तो उसको मिलेगा, फिर उसके बाद काटेगा, फिर 15 रुपया उसका देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब तक 5 सवाल का जवाब नहीं दे देगा कोई भी इंसान, कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अपनी जगह से एक कदम हिल नहीं सकता है। उसमें 2 सवाल ये भी होंगे, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। कह देना गलीचे से कमाया, गुटखा में खर्च किया, गलीचे से कमाया, मोबाइल के काले ट्यून में खर्च किया, गलीचे से कमाया, 7 रुपए की चाय पी डाला, गलीचे से कमाया, सिगरेट और बीड़ी को फुर्र जो है वहां से फुक्के उड़ाकर खत्म कर दिए, गलीचे से कमाया, दाढ़ी मुंडा के नबी की सुन्नतों को पैरों तले रौंदते रहे। कह देना ये नहीं चलेगी बात। अपने आप को ये शाहरुख खान सलमान खान बनना छोड़ दो दोस्तों। अगर निकलोगे लोग सोचोगे कि बस यही है, तो लोग कहेंगे देखो सलमान खान की तरह लगा, तो बड़ा फख्र महसूस करोगे। नहीं, नौजवानों ये सोचो कि जब मैं जिधर से निकलूं देखने वाले कहें कि देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले जा रहे हैं, ये मोहम्मदी लोग हैं, ये मुसलमान लोग हैं, इनके चेहरे पर दाढ़ियां होती हैं, इनके मुंह से बस्त होते हैं, इनके कपड़ों के टखने से ऊपर इनका कपड़ा होता है, ये किसी की माँ बहन को देखते नहीं है, इनकी नजरें नीची होती हैं, ये ईमान वाले लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं, ये अमानतदार हैं, इनके पास अपनी अमानतें रख सकते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये शराब नहीं पीते। तुम्हारी मिसालें होनी चाहिए दोस्तों, मिसालें होनी चाहिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21, कि बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना है। अगर नमूना बनाना है किसी को तो मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ दोस्तों। ये हरी पगड़ी कभी नबी ने नहीं बांधी, और हरी पगड़ी की बात आगे चली है। कमली का था, काली और सफेद। यही बात ठाकरे ने कहा ना कि इस्लाम का रंग हरा है, इसलिए स्टेशनों से हरी लाइट निकाल दी जाए, हरी झंडी निकाल दे, भगवा रंग कर दिया जाए। वो भी इस्लाम का रंग उसे बना रहा है। हरी हरी सब्जियां ठूंसे और हरे रंग से इतनी नफरत। ये हरे रामा हरे कृष्णा नहीं दोस्तों, नहीं बच चलेगी बात। अपना लिबास
सुन्नत के मुताबिक बनाओ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट के, एक तालिब इल्म की हैसियत से आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे समझा दीजिए। मेरी बात अगर कहीं दलील से आप दे देंगे, इंशाअल्लाह ताला रहमान इस स्टेज से तौबा करके अपनी बात वापस लेके उठूंगा। कोई गिला शिकवा नहीं, आपको अपना भाई समझूंगा, अपना अजीज समझूंगा, गले से लगा लूंगा कि आपने मेरी इस्लाह कर दी। दोस्तों, बात हक है, सच है, अल्लाह का कुरान है, नबी का फरमान है, आप भी मानिए, हम भी माने। हम जानते हो तो आपको बता दे, आप जानते हो तो हमें बता दे, हमारी आपकी इस्लाह हो जाए। मस्जिदों में अल्लाह के आगे खड़े होकर यही कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही बंदगी करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरातल मुस्तकीम पे चला, सीधी राह शहरा दिखा। तो सीधी राह कौन सी है? अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान। अल्लाह ने पूरी कुरान आगे खोल दी, ले बंदे, ले बंदे, इस पे पढ़ता जा और शहर आप पर सिरात मुस्तकीम पे चलता चला जा। तो अल्लाह के इस रास्ते पर, नबी के इस रास्ते पर क्यों अकेले अकेले जा रहे हो? दोस्तों, तुम किसी जमात के हो, कोई गिला शिकवा नहीं। अरे मुझे भी बताओ, अपने साथ मुझे भी लिए चलो। अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है, तुम्हारे लिए कम नहीं पड़ेगी। आओ, मैं भी हाथ बढ़ाता हूँ, तुम भी हाथ बढ़ाओ, दोनों हाथ पकड़ करके इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं। सिरातल मुस्तकीम की पगडंडियों पर चल पड़े, ना हमारी चले ना तुम्हारी चले तो सिर्फ अर्श वाले की चले या तो मदीने वाले मुस्तफा की चले, सारे गिले शिकवे खत्म हो जाए। यही दावत, यही मैसेज लेकर अगर हम गली गली जाते हैं, पूछे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से हिंदुस्तान के कोने कोने में अल्लाह का करम एहसान है। जो आज से चंद सालों पहले तक नाच गाने की महफिल सजाया करता था, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करे। और इसी रोड पर पीछे भी नाच गाने की महफिल में सजा चुका हूँ और नाच गा चुका हूँ। और अल्लाह की तौफीक से जब कुछ तकरीरें सुनी, जब किताबें पढ़ी, देखा, अल्लाह ने हिदायत की तौफीक दी। सारे अपने म्यूजिक सिस्टम ये उठा के मैंने उसको जलाया और कोड़ा कबाड़ को, लोहा लक्कड़ उठा के किलो को भाव बेच करके लोगों ने कहा, पहले खुर्शीद पागल नाम होता था, लोगों ने कहा सचमुच पागल हो गया है कि सामान को जला रहा है, बेच भी नहीं रहा। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन में 99 से आज तक में 6-7 बच्चे मेरे मर चुके हैं, खत्म हो चुके, पैदा होते हैं, खत्म होते। इस वक्त मेरा एक बच्चा 2 साल की उम्र है और यहाँ मिर्जापुर से डॉक्टर ने उसे सीरियस घोषित करके पीजीआई में रेफर किया है। मेरी औकात नहीं कि मैं पीजीआई में ले जा सकूं, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ जरिया अल्लाह ताला ने मुहैया किया, किसी तरह से भेजा हूं। तो वहां जुमा को पहुंचे कल, तो पता चला कि सिर्फ मंगल और जुमरात 2 ही दिन देखा जाता है। बच्चे का खून घट रहा था, किस तरह से अल्लाह ताला ने वहां एक मुसलमान डॉक्टर को, बहुत छोटा सा डॉक्टर है, मिला दिया है। और वहां पे किसी या आपके इस प्रोग्राम की वजह से और कुछ और वजह से मैं रुक गया, वरना और कहाँ होता, कहाँ आना यही था, ये भी नहीं करना चाहिए, वरना वहां होता, क्योंकि लिखा था यहाँ पे आना। तो इसी वजह से भी और भी नहीं जा सका, अपने किसी तरह से बच्चे को भेजा हूँ वहां पर से। तो दोस्तों, मुसीबतें और तकलीफें किस तरह से ये सारी चीजें उठा करके अल्लाह के फजल से आप लोगों के बीच जा जाकर कोई मुझे लालच नहीं है, कोई नहीं है कि हाँ आप मुझे करोड़पति अरबपति बना दीजिए या आपसे मैं जन्नत की सर्टिफिकेट ले लूंगा। नहीं दोस्तों, सिर्फ यही दर्द, सिर्फ यही एक लेकर के कि जैसे अल्लाह का कुरान, जैसे नबी का फरमान मुझे मिला है, जैसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, सोचता हूँ कि शायद है कि आप में से भी कोई जवान, आज अल्हम्दुलिल्लाह 4-5-7 लोगों ने जो हाथ उठाया है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने हद कर लिया कि आज से दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, इंशाअल्लाह ताला रहमान इसका कुछ तो अजर इनको तो मिलेगा, इंशाअल्लाह मुझे भी मिलेगा, और जो जलसा का इनेकाद किया इनको भी इंशाअल्लाह ताला रहमान मिलेगा। और लोगों ने, उन्हें भी अल्लाह ताला हिदायत और तौफीक दे कि वो भी उठे। अगर हाथ उठाने की ताकत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई, कम से कम दिल में जज्बा लेकर उठे कि आज के बाद से इंशाअल्लाह ताला रहमान चेहरों पर दाढ़ियां नहीं मुड़ाएंगे, कपड़ों पर टखने के नीचे नहीं गिराएंगे, मस्जिद में ही सिर्फ जा करके और टोपी लगा के नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हर वक्त चेहरों पे, हमारे सरों पे टोपियां और चेहरों पे दाढ़ियां होंगी। मस्जिद में जाते हैं, जब बात की बात से याद आ गई कि कहीं कहीं तो प्लास्टिक की टोकरी की तरह टोपी रखी होती है और कहीं की बेत की टोकरी होती है, यहाँ पता नहीं है कि नहीं है। कहीं के मस्जिद में वो जैसे चटाई नहीं होती, चटाई की बेत की तरह टोपी, और कभी आदमी पढ़ता है नमाज में, सजदे में रुकू में गया तो गिर जाता है। अब जरा आप लोग ईमानदारी से बताइए, अगर आपको अपने लिए टोपी खरीदना हो तो वो बेत वाली टोपी कभी खरीदेंगे? आप खरीदेंगे कभी? अपने लिए नहीं खरीदेंगे, अपने लिए बेत की टोपी नहीं खरीदेंगे, मस्जिद में रखने के लिए टोकरी की टोपी, अपने लिए प्लास्टिक की टोपी नहीं खरीदेंगे। क्यों? अगर कहते हैं टोपी पहन के जाओ, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जाओ, अगर शादीशुदा हो ससुराल में जाओ, अगर जब ऑफिस में काम करता हो, क्या लोग कहेंगे जोकड़ बन के घूम रहे हो क्या? अब मस्जिद में अल्लाह के आगे जोकड़ बन के खड़े होते हैं तो कोई फिर नहीं।
اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جب مسجد یعنی نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وضو بنائیں گے تو گھڑی یا موبائل اٹھا کر کے جیبا میں رکھ لیتے ہیں، اور جب وضو جو بنا لیے اس کے بعد یہ گھڑی اٹھایا اور یہ موبائل لیا اور سجدے کی جگہ پہ نیچے رکھ دیں گے۔ اب بتائیے جب یہ کہا کہ نماز میں پڑھو تو یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ہم نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین اور قل اللہ احد، اب اللہ اکبر کہے سبحان ربی العظیم 4:32۔ اب بتائیے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو نوکیا 1600، نماز میں دھیان نہیں بھٹک رہا ہے۔ تو یہ جو نماز کے آگے موبائل، گھڑی، تو کہیں یہ چشمہ، تو کہیں یہ رومال، کہیں ٹارچ، یہ جو آگے رکھتے ہیں یہ غلط ہے، نہیں رکھنا چاہیے، جیب میں رکھ لیجئے، کسی جگہ رکھ دیجئے کہ نماز میں خلل نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو۔ نماز جیسے آپ باہر سے جھک رہے ہیں تو اندر سے بھی اللہ کے آگے جھکیے، اپنے دل سے بھی اللہ کے آگے خشوع و خضوع اختیار کیجئے۔ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں؟ ہماری نمازیں جو سنت کے خلاف ہو رہی ہیں۔ اور یہاں سے اٹھتے اٹھتے ایک بات کہہ کر کے اٹھنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی رحمان، اور جب بھی آپ کو مل جائے گا مجھے میرا موبائل نمبر 9919 73 70 53 9919 73 70 53، جب بھی آپ کو حوالہ مل جائے تو مجھے بھی دکھا دیجئے گا۔ اگر کوئی ایک بھی حوالہ صحیح حدیث سے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنا ہاتھ یہاں باندھا ہے پوری زندگی میں کہیں ایک بار بھی، تو مجھے دکھا دیجیے۔